દાન, શીલ આપણે બંને જોયા. હવે આજે તપ. આજ ઘણાને તપ લાગે છે, અસાતા લાગે છે, ટફ લાગે છે, પણ આજે આપણે એને એકદમ સિમ્પ્લિફાઈ કરી દઈશું. Do you understand? You don't understand Gujarati, right? I understand. No, it's okay. How about Hindi? It's fine with you? Better Gujarati than Hindi for me. I see. Okay. I'll try to speak in English as well. You can understand Gujarati? Okay, fine. So, we all know we bind karmas. So, the inflow of karma is called ashrav. कर्म जब भी आते हैं, कर्म आवे छे ने शू कहेवाय? आश्रव, इनफ्लो ऑफ कर्म. When you stop it, it's called संवर. But how about जो कर्म ऑलरेडी आ चुके हैं, ऑलरेडी आवी गया छे, એને આપણે કેવી રીતે દૂર કરવાના? તપથી એની નિર્જરા કરવાની. કર્મા ટોપિકમાં આપણે શીખશું how do we bind karma, what are the different types of ashrav, what are the different types of samvar, and today we are going to learn what are the different types of tap which can help you shed your past karmas. Okay, so now let me ask you, as per you, what are the different types of tap? કયા કયા તપ હોય છે? બાહ્ય તપ અને આંતરિક તપ. બાહ્ય તપ 6 પ્રકારના અને તપ. ઓકે, હા ગીતાબેન, બાહ્ય તપ, આભ્યંતર તપ. ઓકે, એમાં કયા કયા? બાહ્ય તપ, સિદ્ધિ તપ તો છે ને ઉપવાસના અલગ અલગ મેથડ્સ છે, અલગ અલગ વેરિયન્ટ્સ છે. ઓકે, 28. ઓકે, 6 अभ्यंतर. बट मेजोरिटी जी दीपिका बेन ने ख्याल आ गयो, बराबर. मेजोरिटी जैन्स दे फील ओनली उपवास, आंबेल, एकाशना, वर्षी तप, ये सब क्या है? तप है. बट दैट इज ओनली वन टाइप ऑफ तप. Okay, so the first tap is Anshan tap. When you fast for limited time, for example, Ekashna, I will eat only once during the day. Upvas, I will not eat whole day anything, I'll just drink the boiled water. Ambil, I will not touch, I will not eat any oil, ghee, sweets, vegetables, fruits. That is called Ayambil. Very healthy. Naukarsi. That's the smallest cup of Anshan. કેટલા લોકો નૌકાસી કરે છે every day? Okay. Every day કોણ કરે છે? 1, 2, 3. સરસ. आप भी हिंदी बोलते हैं, बराबर? ओके, सो आई ट्राई टू स्पीक इन हिंदी, गुजराती, इंग्लिश. मारवाड़ी सीखना पड़ेगा. ओके, सो लिमिटेड टाइप का तप होता है, उसे क्या कहते हैं? अनशन, लिमिटेड टाइम के लिए. और नौकासी तो एवरी जैन को करना चाहिए. इट्स अ स्मॉलेस्ट तप. What is Naukasi? After you have your dinner, you stop taking any food or water till next day morning, but until when? 48 minutes after the sunrise. Yes. After dinner, before sunset. Again, see, it's not mandatory, by the way. Naukasi, if you do it,
વેલ એન્ડ ગુડ. બટ માનો કે કોઈ બિઝનેસ થી 9 વાગે જ આવે ઘરે. ઇન્ડિયામાં તો બધા બિઝનેસમેન 9-10 વાગે આવે. So that doesn't mean you can't do Navkarshi. Okay, fine. Ideally, you should have your dinner before sunset. But if it is not feasible for you, then okay, 9 o'clock you had your dinner. Water भी पी लिया. अभी क्या करो? Navkarshi का तप. So next day, 48 minutes after sunrise, till that time you cannot eat or drink anything. So that's the smallest step everybody should do. કેટલા વાગે ઉઠો બધા? જી. The Japanese researchers, doctors, they just got the Nobel Prize, intermittent fasting. This is exactly Absolutely. intermittent fasting. Absolutely. When you stop eating after sunset, So don't eat until say sunrise or 48 minutes after sunrise, 14 hours. it's intermittent fasting. So Lord Mahavir has given us all these solutions 2600 years ago. आइडियली सनसेट के पहले खाना खा लेना चाहिए. अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मानो कि आपने 8 बजे खाना खाया, बाद में आप क्या कर लो? नवकाशी तप ले लो. बराबर है. दूसरे दिन सनराइज के 48 मिनट्स के बाद आप खा या पी सकते हो. पानी की छूट भी नहीं होती है. बराबर. सो सिर्फ पर्यूषण में नहीं, ये तब तो बहुत आसान है. 3 टाइम हमने भोजन ले लिया. ओके, अभी तो सिर्फ क्या करना है? अभी तो ऐसे भी रात को सोने वाले, और काफी जन जिसकी जॉब वगैरह नहीं होती वो 8 बजे के पहले उठते नहीं है, या तो 10 बजे की जॉब, 9 बजे की जॉब होती है, 7:30 को उठते हैं, नौका से आ जाती है तब तक. हाँ, तो everybody should do this because it's very easy. आपको पता नहीं होगा, एक नवकाशी का तप अगर आपने पूरे भाव से किया तो उसमें इतनी ताकत है, 1 करोड़ जन्म के कर्म भी आप निर्जरा कर सकते हो. इतनी ताकत है उसमें. ओके, सो लिमिटेड टाइम इज कॉल्ड अनशन. अनशन का एक टाइप क्या है? फॉर लिमिटेड टाइम. सेकेंड टाइप फॉर लाइफ टाइम. लाइफ टाइम ने શું કહેવાય? સંથારો. See, when you feel, or if your guru knows that you are not going to survive, many a times doctor even tells he has got only few hours or few days left, he is not going to survive beyond that. Barabar, doctor sahib? So that time you should do santharo. Okay, santharo, it's called Pandit Maran. You are giving up everything, not only food, all your possessions, all your wealth, all your relationships. And then, you had come alone and you are planning to go back alone. એટલે શું કરવું જોઈએ? એક શ્રાવકના કેટલા મનોરથ છે? 3 मनोरथ है. बराबर. पहले तो मैं कभी आरम संभारम छोड़ू, 12 व्रत ग्रहण करूं. सेकंड, मैं कभी पंच महाव्रतधारी साधु बनूं. और थर्ड, मैं कभी पंडित मरण मरू. એટલે ભાવના તો ઈ જ રાખવાની. આંખ બંધ થાય પહેલા પંચ મહાવ્રત અને સંથારા સહિત. ओके, सो कितनों से तप नहीं होता, भूखा नहीं रहा जाता? कितने जन ऐसे हो गए ना? ओके, medically also, yes. Don't worry, भगवान की दुकान में सब सॉल्यूशंस है. हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम और आपको 11 टाइप के ऑप्शंस देंगे. ओके, सो यू हैव नो एक्सक्यूज बट टू डू तप. अभी अनशन तप किसने अच्छा किया था? भगवान महावीर ने खुद ने अपने स्वयं के श्रीमुख से किसके तप की प्रशंसा की थी? कौन હતું? वेरी गुड.
धन्ना अणगार। धन्ना अणगार वो ऐसे तपस्वी थे कि वो कैसा खाना खाते थे मालूम है? आम्बिल का तो खाते थे, लेकिन वो खाना पड़ा होगा ना तो डॉग भी उसे नहीं खाएगा। ऐसा रूखा सूखा, कुछ होता ही नहीं था। ऐसा आम्बिल तो करते थे, लेकिन ऐसा भोजन लेते थे। हम तो क्या करते हैं, आम्बिल करते हैं तो 10 12 15 वैरायटी हो जाती है, लेकिन धन्ना अणगार ऐसा तप करते थे कि डॉग भी उनका खाना नहीं खाएगा। ऐसा खाना वो खाते थे। और उनका शरीर तपस्या से ऐसा हो गया था कि वो चलते थे ना, तो मशीनरी अगर आप थोड़े दिन चलाओगे नहीं तो इट मेक्स नॉइज, राइट? इफ यू डोंट मेक इट वर्क। वो जब चलते थे ना तो उनके बोन्स घिसते थे और आवाज आती थी कुचुड़ 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 करके। ऐसा शरीर उन्होंने तपस्या से कृश कर दिया था। इसीलिए भगवान के श्रीमुख से धन्ना अणगार का नाम आया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। पहला, ये अनशन कौन सा है? बाह्य तप। तो बाह्य तप और आभ्यंतर तप, ये तप के दो प्रकार है। बाह्य तप में आत्मविशुद्धि तो होती ही है, पर क्या होता है, साथ साथ में अपने शरीर पे उसकी इफेक्ट दिखती है। उपवास आम्बेल करो तो शरीर पतलू थी जाए ना, यू लूज वेट, यू लूज फ्लैश, बराबर? तो शू थाय? शरीर पर एनी इफेक्ट देखाय। पण आभ्यंतर तपमां आत्मविशुद्धि थाय छे, पण बॉडी पर એટલી असर देखाती નથી। बट बोथ आर रिक्वायर्ड, बोथ सपोर्ट्स ईच अदर। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही करना चाहिए या ये करना चाहिए, दोनों एक दूसरे के सपोर्टर है। आभ्यंतर આપણે લઈએ 6 टाइपના છે, प्रायश्चित नहीं बता। ओके, सो आज हम 12 टाइप के तप सीखेंगे। उसमें हमने देख लिया पहला कौन सा है, अनशन। अनशन करने से फायदा क्या है? अनशन तप से आप एक टाइप का दान कर सकते हो। कौन सा दान है वो? अभय दान। आपके लिए खाना बनता नहीं है तो जितनी भी हिंसा होती है तो आप वो जीवों को क्या करते हो? अभय दान देते हो। अनशन से क्या फायदा होता है? फ्रीक्वेंट जो खाने की हैबिट होती है वो कम हो जाती है। आपके स्टमक को क्या मिलता है? रेस्ट मिलता है। आपका ब्लड फिल्टर हो जाता है, टॉक्सिन्स सारे निकल जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे जो भगवान है ना, हमारे जो भगवान है, सुपर डॉक्टर थे, राइट? हमने उन्होंने सिर्फ भगवान की ओर देखा है, बट ही वॉज सुपर साइंटिस्ट, ही वॉज सुपर डॉक्टर, ही वॉज सुपर साइकोलॉजिस्ट, ही वॉज सुपर एनवायरमेंट फ्रेंडली पर्सन। हमने हमारे भगवान को कभी ऐसे प्रेजेंट किया ही नहीं है। बस जैन धर्म क्या, उपवास आम्बेल, ऐसा नहीं है। जब हमने प्रॉपरली सीखा नहीं है इसलिए हम दूसरे को बता नहीं सकते, बट इट्स ब्यूटीफुल, इसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाते। दूसरा तप आता है उणोदरी। उणोदरी का मीनिंग किसको पता है? बहुत आसान है जी, भूख से कम खाना। भूख से कम खाना। और ये जनरल मीनिंग है, लेकिन हम तो कुछ नया सीखेंगे। थाली में जो परोसा है उसमें से वस्तु करके आते हैं। ओके, एक चीज कम कर दी, फाइन। और कंट्रोल ऑन द आइटम्स। कंट्रोल ऑन आइटम्स, ओके। स्वाद ओछो करવો। स्वाद નો अलग आवे, अलग तप છે। अच्छा, दो टाइप के उणोदरी तप है, द्रव्य उणोदरी, भाव उणोदरी। द्रव्य उणोदरी में आपकी भूख है, मानो कि आपकी भूख है, इफ यू ईट एवरी डे 3 रोटीज
today I'm going to eat only 2 rotis. So that is also one type of तप. वो द्रव्य तप हो गया. भाव तप, I will reduce use of my senses. 5 इंद्रिय का मैं उपयोग कम करूंगा. मेरा गुस्सा कम करूंगा. I will reduce my anger, ego, deceit and greed. कभी सोचा है आपने? ये भी एक टाइप का तप है. उसे क्या कहते हैं? भाव उणोदरी. तो ये कितने आसान तप है जो हम एवरी डे 24/7 365 डेज कर सकते हैं. बराबर है. इसमें कोई हेल्थ रीजंस बीच में नहीं आते. राइट. अभी उणोदरी तप करने से क्या फायदा? उससे क्या हो जाता है? हमारी हेल्थ है ना अच्छी रहती है. बिकॉज क्या है हमारी वीकनेस? टेस्टी फूड मिल गया तो कैपेसिटी से डबल खा लेते हैं और बाद में रात को एसिडिटी ये वो सब सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. तो उणोदरी से क्या फायदा है? हमारी हेल्थ अच्छी रहती है. और भाव उणोदरी से हमारे कषाय कम होते हैं. कषाय कम होते हैं तो अभी आपको सबको पता है संसार का परिभ्रमण कम होता है. तीसरा है वृत्ति संक्षेप. उसको भिक्षाचर्या भी बोलते हैं. उसमें क्या? यू कंट्रोल योर डिजायर्स, योर विश, यू कंट्रोल योर माइंड. जैसे कि आज मैं एक टाइम पे मैक्सिमम 5 द्रव्य ही लूंगा. कितनी भी आइटम हो खाने की, आई विल ईट ओनली 5 आइटम्स ड्यूरिंग माई मील. बराबर है. उससे क्या हो जाता है? उणोदरी तब भी हो जाता है. उसको कितना सारा फायदा है उससे. टेस्ट पे भी कंट्रोल हो जाता है और आपको अभयदान का भी लाभ है क्योंकि बाकी सब आइटम आप नहीं लेते हो तो उसका पाप आपको नहीं लगता. वृत्ति संक्षेप में और क्या कर सकते हैं हम लोग कि आज मैं आई विल नॉट वॉच टीवी टुडे. वो भी एक वृत्ति संक्षेप है. मुझे चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद है. आई विल नॉट ईट चॉकलेट और आइसक्रीम टुडे. दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ वृत्ति संक्षेप. आई विल ऑब्जर्व. मुझे बोलने की बहुत आदत है. आई विल कीप मौन टुडे. ये सब क्या है? वृत्ति संक्षेप. इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है इट इंक्रीजेस योर विल पावर. इससे हमारा विल पावर बढ़ता है एंड वी कैन कंट्रोल अवर डिजायर्स. समझाय છે ને બધાને? સ્પીડ બરાબર છે ને? ओके. फोर्थ एक्सटर्नल तप, रस परित्याग. टंग नो 2 કામ છે, બોલવું અને ટેસ્ટ. બરાબર. ખાવું ચાલો વાંધો નથી પણ ટેસ્ટ લઈએ છે ને ત્યાં પ્રોબ્લેમ છે. तो कंट्रोल योर टेस्ट हैबिट्स. तो रस परित्याग में इफ आई लाइक पिज्जा, पाव भाजी, आज मैं उसका बना हुआ है लेकिन त्याग करूंगा. आज मैं सादी रोटी खाऊंगा. मुझे जो स्वीट्स बहुत पसंद है उसका मैं मेरे सामने है लेकिन मैं उसका आज त्याग करता हूं. आई विल ईट वॉट एवर इज सर्व्ड इन माई प्लेट. बेनों मजा पड़ी जाए ना. कोई कंप्लेन જ ના કરે. શાંતિ લાગે ને બહુ. ડોક્ટર સાહેબ જો તમે બેવને રસ્તા આપી દીધા છે, બેવ તપસ્વી થઈ જજો એટલે બેવને બેનિફિટ. બરાબર. ઓકે ચાલો તમારા બેના એક એક તપ તો ફિક્સ થઈ ગયા. ઓકે. सो इसका फायदा क्या है? रस परित्याग नो फायदो शू है कि तमारू फूड प्रत्ये जे आसक्ति है, एटेचमेंट है, लाइकिंग डिसलाइकिंग है, ये बधु शू थई जाए धीरे 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 ओछू थई जाए. यस. धनना अणगार केवू फूड खाता? रस परित्याग. आंबेल नो तो खाता पण एमां बी पाछुं डॉगी नो खाय एटलू रूखू सूखू. केवो रस परित्याग हतो एमनो. अने भोजन लईए छे ने
हम कर्म के टॉपिक में इसको डिटेल में सीखेंगे. When we eat, we bind karma, but niddhat karma, light karma. But after we eat, we praise that food. हमारे जब इमोशंस उसमें मिक्स हो जाते हैं, वी बाइंड निकाचित कर्म. वाई? एक तो आपने किसी वनस्पति की हिंसा की, किसी जीव की हिंसा की, एंड देन यू से व्हाट अ टेस्टी फूड आई हैड टुडे. घरे गेस्ट आवे ने, गेस्ट ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, સલાડ વગેરે ડેકોરેશન નહીં કરવાનું. બરાબર? શું થાય? એક તો આપણે જીવ હિંસા કરીએ છીએ અને સાથે સાથે એનો શો ઓફ પણ કરીએ છીએ. સો ઓનલી એક્શન, લાઇટ કર્મ. એક્શન પ્લસ ઇમોશન, very solid karma, nikachit karma. You have to suffer that karma. You have no other choice. Fifth one, काया क्लेश. मतलब विलिंगली बॉडी से क्या करना है? बॉडी को थोड़ी तकलीफ देनी है, विलिंगली. जैसे कि यू स्टैंड ऑन वन लेग, एक पैर पे खड़े हो जाओ, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, increase your tolerance power. Then भगवान महावीर को केवल ज्ञान कौन से आसन में हुआ था? गोदोही का आसन. जो दिख रहा है ना आपको, गोदोही का आसन. भगवान was sitting in this posture for 48 minutes and he attained the केवल ज्ञान. सो काया कलेश तो बहुत कुछ हो सकता है. आई विल नॉट टेक बाथ टुडे, वो भी एक टाइप का काया क्लेश है. काफी जन क्या बोलते हैं, आज आपने कुछ तप नहीं किया, लेकिन उनके लिए तप की डेफिनेशन क्या है? उपवास, आयंबेल, एकासना. लेकिन हो सकता है वो बाकी के 11 तप कर रहा है. सो हम लोग क्या बाहर की एक्टिविटी से लोगों को जज करते, बट काफी कुछ लोग करते रहते. सो वी शुड नेवर एवर जज. अभी यहाँ पे तो बहुत सुविधा है. काया क्लेश और कैसे कर सकते हो? स्विच ऑफ द फैन, ओपन द विंडो एंड देन डू सामायिक. मैं फैन, एसी के बिना सामायिक प्रतिक्रमण करूंगा. ये भी एक काया क्लेश हो गया. ऐसे बहुत सारे रास्ते. आप तो जैसे नॉर्मली यहाँ पे तो डिफिकल्ट है थोड़ा, लेकिन इंडिया में पास पास में उपाश्रय होते हैं, तो लोग बैरफीट जाते हैं, उपाश्रय, मंदिर सब. वो भी क्या हो गया? काया क्लेश. इससे क्या हो जाता है? इससे आपका बॉडीली जो अटैचमेंट है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है. काफी जन होते हैं, थोड़ी तकलीफ आई ना तो उनका पूरा कंसंट्रेशन उसमें चला जाता है, दुखी दुखी हो जाते हैं, उनकी बॉडी को कुछ होता है. तो बॉडी का अटैचमेंट, रिलेशंस का अटैचमेंट तो छोड़ना ही है, खुद की बॉडी का भी अटैचमेंट छोड़ना है. और 6th, प्रतिसल्लीनता. प्रतिसल्लीनता मतलब मैं सीनफुल एक्टिविटीज या संसारी एक्टिविटी छोड़कर धर्म में, आत्म भाव में स्थिर होऊंगा. હું સંસારની એક્ટિવિટી નહીં કરું. જેમ કે મને ટીવી જોવાનું મન થયું, ઓકે આજે ટીવી નહીં જોઉં, પણ એની બદલે શું કરીશ? સામાયિક કરીશ. એને શું કહેવાય? પ્રતિસલ્લીનતા. સંસારી એક્ટિવિટી છોડી દીધી, પાપકારી એક્ટિવિટી છોડી દીધી, અને શું કર્યું તમે? એટલે પુણ્યના ઉદયમાં તમે પાછું નવું પુણ્ય બાંધો છો. અધરવાઇઝ ઓલું ટીવી જોવો તો શું થાય? પુણ્યના ઉદયમાં પાપ બંધાય છે, કારણ કે ઇમોશન્સ આવે છે ને. हाँ, मोदी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए. वी गिव सो मेनी कमेंट्स विच इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल, बट देते हैं. तो ये कौन से हो गए? 6 टाइप के बाह्य तप. कौन बोलेगा 6 हो 6? बोलो.
वेरी गुड। ये जब अपना सेशन कंप्लीट होता है ना 10-15 मिनट पहले, यहाँ पे सारे 12 के 12 तप है, और जो जो अभी मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं वो आप डे टू डे लाइफ में कैसे कर पाओगे। एक एक तप के 6-7 वेज है, आपको जो भी सुटेबल है आप कर सकते हो। और 30 डेज है, आप एक तप भी कर सकते हो, सारे तप भी कर सकते हो। कंटिन्यूसली 30 डेज किया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो एटलीस्ट 1 साल में कंप्लीट करना। नेक्स्ट संवत्सरी के पहले मुझे इसका फोटो भेज दे, ठीक है। बेसिकली इसका टाइटल क्या है, इवन आई कैन डू तप। काफी जन बेचारे वो दुखी हो जाते हैं, मुझसे कुछ तप नहीं हो जाता, नेगेटिव हो जाते हैं। तो एवरी वन कैन डू तप, छोटा बड़ा उम्र वाला बीमार जो भी है सारे इसमें तप कर सकते हैं, ठीक है। अभी आभ्यंतर तप, प्रदीप भाई आभ्यंतर तप में पहलू शू आवे? प्रायश्चित, बराबर। आभ्यंतर में पहलू प्रायश्चित। आपने कभी सोचा है सिर्फ हमारी जो मिस्टेक होती है उसको हम कन्फेस करते हैं, उसका हमें पछतावा होता है, दिल से पछतावा होता है, तो वो भी एक टाइप का तप है। कितना आसान है ना। बट भूल करने के बाद पछतावा कितने जनों को होता है? तुरंत कितने जनों को होता है? दिल से कितने जनों को होता है? काफी बार गलती हो जाती है, भूल થઈ જાય, પણ આપણે सॉरी भी कही दे, कहिए अपना फैमिली मेंबर स्पाउस ने सॉरी, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, उसमें कोई रियल प्रायश्चित नहीं है। वो रिलेशन मेंटेन करने वाली सॉरी है, वो आत्मा के शुद्धि करने वाली सॉरी नहीं है, राइट। सो कन्फेशन ऑफ योर मिस्टेक्स, तो एक आपकी सिस्टम होनी चाहिए। अब जब भी इंडिया आते हो आपकी एक डायरी होनी चाहिए खुद की, कि मुझसे ये मिस्टेक हो गई है। जब भी मिस्टेक होती है आप लिखते जाओ, एक कन्फेशन बुक बना दो छोटी सी, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। जब भी आप इंडिया आते हो तो अपने गुरु को या कोई भी साधु संत को वो डायरी दिखा के बोल देना मुझसे ये भूल हुई है, मुझे कुछ प्रायश्चित दो। फिर जैसी भूल वैसा प्रायश्चित। छोटी भूल है तो शायद एकासना कर लो, आइम्बिल कर लो, उपवास कर लो। बड़ी भूल है तो वो हिसाब से आपको प्रायश्चित देंगे। तो इससे क्या हो जाता है, प्रायश्चित करवाथी मेन फायदो शू, આપણું हार्ट एकदम हल्कू થઈ जाए। क्योंकि जब भी गलती होती है ना और हम किसी को बताते नहीं है तो मन ही मन वो गलती हमें तकलीफ देती है, हमें डिस्टर्ब करती है। तो ये डायरी में लिख दिया, मतलब आपने भाव से तो अपने गुरु को बता दिया, और फिजिकली जब जाते हो तभी उसको दिखा भी देना, राइट। सो क्योंकि क्या हो जाता है, कभी एक पाप छुपाने के लिए, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते। हो गई गलती, गलती होना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, गलती को छुपाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम। okay? प्रायश्चित में एक बहुत अच्छी स्टोरी है, आगम शास्त्र में आती है। एक मुनि थे, वो मुनि से तपस्या होती ही नहीं थी, तपस्या एमनाथी थती ज नहोती, बहुत कोशिश करते थे नहीं होती थी। और जो पंच महाव्रतधारी साधु होते हैं उनका नियम होता है संवत्सरी के दिन 24 उपवास करना, पानी भी नहीं पी सकते। उपवास तो करना ही है लेकिन पानी भी नहीं पी सकते। तो मुनि ने सुबह से दोपहर तक, संवत्सरी का दिन था, कोशिश की उपवास करने की, दोपहर को रहा नहीं गया। फिर उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा ली। गुरु को पता था कि है बहुत शिष्य बहुत अच्छा है लेकिन उसमें वीकनेस है, मे भी उसकी बॉडी की ऐसी रिक्वायरमेंट है। तो गुरु की आज्ञा लेकर संवत्सरी के दिन वो भिक्षा लेने जाते, गोचरी लेने जाते, और
क्या लेके आते हैं? पात्र में भात लेके आते, चावल, राइस लेके आते। और साधु का नियम होता है डे टू डे लाइफ में, कुछ भी गोचरी लेके आते हैं तो तुरंत वापस नहीं सकते, पहले अपने गुरु को दिखाना पड़ता है, बाद में वो वापस सकते। तो गुरु को दिखाया और उनके हाथ में पात्र में चावल थे, उनको बहुत दुख हो रहा था, लेकिन उनके साथ दूसरे तपस्वी मुनि थे, जबरदस्त तपस्वी। किसी का 28 था, किसी का मासिक शमन था, 30-30 उपवास वाले तपस्वी थे। तो उसमें से एक तपस्वी, सब लोग ने इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि संवत्सरी के दिन भी तू भूखा नहीं रह सकता। और एक को तो गुस्सा आया ना, तो भात के अंदर उसने थूक दिया। कुरगुरु मुनि को गुस्सा आया? नहीं आया। उनको इतना पश्चाताप, इतना पश्चाताप, इतना पश्चाताप कि मुझसे हो क्यों नहीं रहा है। वो थूका, उनको जरा भी दुख नहीं था, जरा भी उनको गुस्सा भी नहीं आया। वो तो ऐसा समझ रहे थे कि मेरे चावल में किसी ने घी डाल दिया। क्या संभाव था उनका। और पश्चाताप कर करके वो वापर रहे थे और उनको केवल ज्ञान हो जाता है, कंप्लीट नॉलेज। केवल ज्ञान मीन्स कंप्लीट नॉलेज, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मासक शमन के तपस्वी को केवल ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन जो भोजन ले रहे थे संवत्सरी के दिन, उनको केवल ज्ञान होता है। तो भाव प्रायश्चित इतना बड़ा तप है। प्रदीप भाई क्यारे विचारू आऊ भी थई सके? प्रायश्चित, जब भी कुछ गलती हो जाती है प्रायश्चित कर ले। वो एक बार शायद अप्रायश्चित करते हो तो कोई सुनाएगा, दैट्स ओके। गलती हुई है तो कभी सुनना भी पड़ता है, लेकिन आपका हार्ट लाइट हो जाता है, आपके कर्म की बहुत निर्जरा हो जाती है। दूसरा तप, दूसरा आभ्यंतर तप, विनय। कभी सोचा है सिर्फ विनय करने से, रिस्पेक्ट करने से आप तप कर रहे हो, आपके कर्मों की निर्जरा हो रही है। फिर एक बार, निर्जरा मतलब पास्ट में जो कर्म लगे हैं उसको आत्मा से दूर करना। तो विनय, रिस्पेक्ट से। भगवान ने कहा है जीव का विनय तो कर, लेकिन जड़ का भी विनय कर। मतलब हम जीव का विनय कर लेते हैं, पेरेंट्स के पैर छू लेते हैं, बराबर है, साधु संत को वंदना कर लेते हैं, लेकिन दरवाजा कैसे बंद करते? गुस्सा आता है तो दरवाजा कैसे बंद होता है? जोर से, बराबर। कभी कभार हम जल्दी में होते हैं तो हमारी बैग, हमारा पर्स कैसे रखते हैं हम? कभी कभार फेंक देते। तो ये क्या हो गया? जड़ के साथ अविनय। तो भगवान ने कहा है जीव के साथ और जड़ के साथ, दोनों के साथ विनय करना है, रिस्पेक्ट देना है। और सबसे बेस्ट विनय किसका था? गौतम स्वामी का। प्रकांड पंडित थे। एक बार गौतम स्वामी जहां पे विराजमान थे, तभी तो ब्राह्मण थे, पंडित थे, 500 शिष्य के गुरु थे। तो उनको पता चला यहाँ पे भव्य समोसरण है और वहां पे कोई आया है, उनको पता भी नहीं था ये तीर्थंकर आया, कोई आया है। और उन्होंने देखा देवलोक से, और वहां तभी वो हवन कर रहे थे, ब्राह्मण थे, हवन कर रहे थे। तो उन्होंने देखा देव विमान आ रहे हैं। तो पहले तो उनको ईगो हुआ, वाह मेरा हवन, क्योंकि बहुत ज्ञानी थे, इतना फेमस है कि देवलोक भी आते हैं। थोड़ी सेकंड्स में क्या हुआ? देवलोक के विमान समोसरण की ओर चले गए। तो गौतम स्वामी पीछे पीछे गए, कौन है मुझसे बड़ा ज्ञानी? और धम 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 करके समोसरण के स्टेप्स चढ़ रहे। और तब प्रभु ने उन पे दृष्टि की और उनको बोला गोइमा
कौन है, मेरा नाम जान रहा है, मैंने तो इनको कभी देखा नहीं है, इनके बारे में कभी सुना नहीं है, कभी मिला नहीं हूं, मेरा नाम कैसे जानते। और थोड़े स्टेप्स चढ़े। प्रभु ने कहा है, तेरे मन में डाउट है ना, आत्मा जैसा कुछ होता है कि नहीं। जैसे ही गौतम स्वामी ने सुना, उनको पता चल गया ये सर्वज्ञ है, ये पूर्ण ज्ञानी है, मेरे अंदर की बात भी जानते हैं। और उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। उन्होंने नहीं देखा मेरा इतना बड़ा आश्रम है, मेरे 500 शिष्य है, मेरा परिवार है, मैं कैसे छोड़ू। भगवान के पास जाकर तुरंत ही क्या की, दीक्षा ले ली। सोचो, और एक बार गौतम स्वामी सरेंडर हो गए ना, इतने बड़े पंडित थे, लेकिन भगवान के सामने कैसे बैठते थे मालूम है? उकड़ू आसन। उकड़ू आसन मतलब पैर के बीच में, दो पैर के बीच में अपना सिर रख के बैठते थे, जैसे एकदम जीरो, कुछ है ही नहीं, उनका कुछ अस्तित्व नहीं है, એવી રીતે બેસતા હતા। કહેવાય છે એટલા જ્ઞાની હતા, પણ ભગવાનને પૂછતા એકેન્દ્રિયમાં કેટલી ઇન્દ્રિય હોય, આપણે શું કહીએ? આવું થોડી પૂછાય। મારી પાસે કઈ જ્ઞાન છે જ નહીં, આઈ એમ ઝીરો, પ્રભુ પાસેથી મારે જ્ઞાન મેળવવું છે। ઈગોલેસ, એટલે જેમ 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 તમારો વિનય વધે એમ ઈગો down. Even Einstein said, if your ego reduces, your knowledge increases. तो क्या करना चाहिए? विनय, सबके साथ विनय। हमारा प्रॉब्लम ये, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, बट रिस्पेक्ट पाने के लिए पहले देना पड़ता है। બધા સાથે વિનયપૂર્વક વર્તન। આપણે કોઈ પણ વસ્તુ મૂકીએ ને, અવાજ ન આવવો જોઈએ। કોઈ પણ વસ્તુ, આપણે કોઈ પણ એક્શન કરીએ, એમાં શું છે? હડબડી ન હોવી જોઈએ, કારણ કે એમાં આપણો અવિનય। क्या होता है? लेट उठते हैं, ऑफिस के लिए लेट जाते हैं, और कोई कार प्रॉपर नहीं चलाएगा तो हम कमेंट्स दे देते, अविनय कर बैठते हैं उसके साथ। सो ये क्या है? विनय। तब आगे बढ़ते हैं, वैयावच, साधु संतों की सेवा करना। जो वृद्ध जन है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनकी सेवा, ग्रैंड पेरेंट्स की सेवा, बाद में जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जो बीमार होते हैं, उस सबकी सेवा करना, उसे क्या कहा है? वैयावच तप। और वैयावच सेवा वो ही कर सकता है जिसमें ईगो कम है, क्योंकि सेवा तो कौन से भी टाइप की मिल सकती है। मैं यही सेवा करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं चलता है। तो सेवा में भी चॉइस नहीं होनी चाहिए। जो भी मुझे काम दिया गया, मानो के ये टेंपल में कमिटी भी है और बाकी मेंबर्स भी है, तो जो भी पर्यूषण आ रहे, जो भी आपके प्रेसिडेंट है, अभी चलो भारती बहन है, भारती बहन में क्या सेवा दे सकता हूं? भारती बहन को किसी को कॉल नहीं करना चाहिए कि आई नीड यू। इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवर टेम्पल, जहां पे मुझे ज्ञान मिल रहा है, मुझे फायदा हो रहा है, मेरा आत्म कल्याण हो रहा है, मुझे आकर सामने से पूछना है, हाउ कैन आई हेल्प यू। उसे क्या कहते हैं? सेवा। तो बीच में भी मैंने बात की थी, साहेब ने गई तो वो कि તમે રિમોટલી भी કેટલી બધી સેવા આપી શકો। ઓકે, તો ભારતીબેન, પર્યુષણ પછી એક સેકન્ડ કમિટી બનાવો, મેઇન કમિટી एंड सब कमिटी। અને તમારી પાસે काफी बार क्या होता है मालूम है? प्रेसिडेंट के पास, कमिटी के पास काफी आइडियाज होते हैं, लेकिन मेन पावर रिसोर्सेज नहीं होते। तो તમારે આઈડિયાનું જે લિસ્ટ હોય, એમાંથી તમે અમુક सब कमिटी ने શું કરી શકો? કામ આપી શકો। बराबर। सो बेफायदा उनको वैयावच का लाभ भी है, शासन प्रभावना का भी लाभ मिल जाएगा, और आप भी
जैनिज्म का ज्यादा प्रचार कर पाओगे। रेवती श्राविका, रेवती श्राविका ने प्रभु को क्या दिया था? बिजोरा पार्क बोरायुं હતું। एमने तीर्थंकर नाम कर्म बांधु। इतने भाव से उन्होंने सुपात्र दान किया था। सुपात्र दान देने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता है। तो काफी जनों को गलत फहमी होती है, तीर्थंकर नाम कर्म मतलब तीर्थंकर बनेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन उच्ची पदवी पाएंगे। मे बी गणधर, आचार्य, उपाध्याय, ओके, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब भी हो सकते हैं तीर्थंकर नाम कर्म। फोर्थ, स्वाध्याय। जो अभी हम, आपको पता नहीं अभी स्वाध्याय कर रहे हो ना, आपके कर्मों की कितनी निर्जरा हो रही है। करोड़ों करोड़ों कर्मों की आपकी निर्जरा हो रही है। सिर्फ 1 घंटा आप स्वाध्याय करते हो, कितने कर्मों की निर्जरा हो रही है। इसमें तो शरीर को कोई तकलीफ नहीं है, राइट। स्वाध्याय के 5 प्रकार हैं: वाचना, पूछना, पर्यटना, धम्म कहा, अनुपेहा। वाचना, सुबह हम आचारांग सूत्र की वाचना, अभी भी सेशन चल रहा है। पूछना, आपको कोई क्वेश्चन होता है, जैसे सब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो भी एक स्वाध्याय का प्रकार है। पर्यटना, जो हमने सीखा है उसको रिवाइज करो। जैसे कि सामायिक प्रतिक्रमण सीख लिया, रेगुलर नहीं कर रहे, उसको क्या करो? रिवाइज करो। और अनुपेहा, जो आपने सीखा है, डॉक्टर साहब આજે જે શીખા તમે એના પર ચિંતન કરવાનું। સવારના આચારાંગ સૂત્ર, અત્યારના તપ, કે હું મારી લાઈફમાં હું કઈ રીતે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકું। यू चेक, जैसे कि प्रायश्चित, अभी घर पे जाके भी आप तुरंत कर सकते हो, आज सुबह से अब तक मैंने कौन सी मिस्टेक्स की, और उसकी आत्मा की साक्षी से, गुरु की साक्षी से, अरियन परमात्मा की साक्षी से 10 मिच्छामि दुक्कडम। तो ये स्वाध्याय के धर्म कथा, जैसे मैं बीच बीच में स्टोरीज बोलता हूं, बराबर है। आप जो सीख रहे हो आप दूसरों को सिखाइए। ये सब क्या हो गया? स्वाध्याय के अलग अलग प्रकार। અને જો તમારે તમારા આત્મા સાથે કનેક્ટ થવું હોય તો સ્વાધ્યાય જેવું તપ નથી। क्यों? क्योंकि बार बार इट विल मेक यू रियलाइज यू आर अ सोल, यू आर नॉट अ बॉडी। हम जो बॉडी में आसक्त हो जाते हैं, स्वाध्याय आपको रियलाइज कराएगा योर ट्रू आइडेंटिटी। स्वाध्याय बहुत पावरफुल है। भगवान ने तो साध्वी को तो जब भी मौका मिले आपको स्वाध्याय करो। पूरे दिन में घंटों के घंटों स्वाध्याय करने को कहा, क्योंकि क्या है, उससे आप अपने आत्मा से कनेक्ट रह सकते हो। ध्यान, 5वां अभ्यंतर तक कौन सा है? ध्यान, जो हमने 1-2 बार किया। ठाणेनम, ध्यान की प्रोसेस क्या है? ठाणेनम, एक स्थान पर बैठ जाओ, ऐसे पोस्चर में बैठो कि आप मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। आप पलाठी मार के बैठ सकते हो, अच्छी बात है। नहीं बैठ सकते, चेयर पे, कंफर्टेबल चेयर पे बैठ जाओ, ठीक है, या तो खड़े खड़े कर सकते हो। मौनेनम, मौन। जानेनम, कोई भी एक सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, उस पे आप क्या करो? कॉन्सेंट्रेट करो। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो? अनुलोम विलोम करके भी आप ध्यान कर सकते हो। नवकार श्वास, आप जब ब्रीद इन करते हो ना, तो मन में क्या चालू होना चाहिए? नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सब्ब साहुणम। पहले एक बार होगा। ब्रीद आउट करते टाइम भी
नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्य। पहले एक बार होगा, बाद में अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। ऐसा डीप ब्रीथ करो, 2 बार नवकार मंत्र, ब्रीथ आउट 2 बार नवकार मंत्र, तो नवकार श्वास। ऐसे आप अलग अलग तरह से क्या कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। और ध्यान का बेनिफिट क्या है, यू रियली फील पीसफुल एंड यू कनेक्ट टू योरसेल्फ। और अभी लास्ट वन है, कौन सा है, कार्योत्सर्ग। कार्योत्सर्ग का मीनिंग क्या है, काया का उत्सर्ग। जो हम बॉडीली फीलिंग में रहते हैं ना, कि मेरी बॉडी है, मैं समीर तो हूं, लेकिन वो समीर किसका नाम है, ये बॉडी का नाम है, बट मैं क्या हूं, आत्मा। सो आत्मा और बॉडी को भिन्न समझना, भेद ज्ञान दशा, उसे क्या कहते हैं, काउसर्ग। एक्चुअली हम लोग की जो प्रोसेस है 4 लोगस का काउसर्ग, वो वाकई में रियल काउसर्ग नहीं है। लेकिन आचार्य भगवंतों ने देखा, वो ऐसे बैठते हैं, उनका विचार और किधर चला जाता है, उससे अच्छा लोगस का काउसर्ग कर लो। लेकिन काउसर्ग की डेफिनेशन ये है, भेद ज्ञान दशा, मैं ये शरीर से भिन्न हूं। ओके, सो ये क्या हो गया, काउसर्ग। जो आप पिक्चर में देख रहे हो, गत्सु कुमाल कौन थे, श्री कृष्ण वासुदेव के यंगर ब्रदर। प्रभु नेमिनाथ के पास उनको भाव हो गए, दीक्षा ले ली उन्होंने, बराबर है, भाव हो गए, उन्होंने दीक्षा ले ली। और उन्होंने भगवान को पूछा, भगवान मैं ऐसा कौन सा तप करूं कि जिसमें मुझे जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्ति हो। सुबह दीक्षा ली और भगवान को पूछ लिया, तो बाद में साधु की 12वीं भिक्षु पड़िमा होती है, उसमें क्या करना पड़ता है, काउसक करना पड़ता है। लेकिन कहां पे, स्मशान में, जंगल में, ऐसी जगह पे जहां पे गारंटेड आपको कुछ ना कुछ उपसर्ग आएगा। उपसर्ग मतलब या तो कोई एनिमल आपको तकलीफ देगा, या तो कोई देव तकलीफ देगा, या कोई ह्यूमन बीइंग तकलीफ देगा। वो तो रेडी थे। हुआ क्या था, वो काउसक में खड़े हो गए स्मशान में जाके, लेकिन उनकी है ना, थोड़े ही दिन पहले एंगेजमेंट डिसाइड हुई थी, सिर्फ एंगेजमेंट डिसाइड हुई थी। ये जो दूसरे भाई दिख रहे सोमिल ब्राह्मण, इनकी बेटी के साथ। तो सोमिल वहां से गुजर रहा था स्मशान के बाजू से, और उसने देखा कि गत्सु कुमार ने दीक्षा ले ली, मेरी बेटी को छोड़ दिया, और अभी यहां पे काउसक में खड़े हैं। बहुत गुस्सा आया उसको, बहुत गुस्सा आया, कंट्रोल नहीं हुआ। हमने आचार्य सूत्र में देखा ना, फैमिली ने લીધે એટલું अटैचमेंट એની डॉटर पर कि वो घोर पाप करी ले। इतना गुस्सा आया, उसने क्या किया, स्मशान था, जलती हुई अग्नि इनके सिर पर रख दी और आजू बाजू में मिट्टी लगा दी। और गत्सु कुमाल तो काउसक में खड़े थे। हमको थोड़ा कभी कुछ जलन हो जाती है तो पूरा दिन वहां पे अपना ध्यान रहता है, कितनी वेदना होती होगी गत्सु कुमाल को। लेकिन उनके भाव क्या थे मालूम है, थैंक यू सोमिल ब्राह्मण, आपकी वजह से मेरे कर्म की निर्जरा हो रही है, यू आर हेल्पिंग मी टू अचीव मोक्ष फास्टर। ऐसे भाव होते श्रेष्ठ लोगों के। और हमें तो किसने कुछ बोल नहीं दिया, जब तक हम सामने रिवर्ट नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं करते, उसको दिखा नहीं देते, बैक आंसर नहीं करते, तब तक हमें चैन नहीं पड़ता। तो गत्सु कुमार ऐसी हालत में काउसक में खड़े थे और उनका मोक्षगामी बन गए। सुबह दीक्षा, लेस देन 48 आवर्स में मोक्षगामी।
ऐसे ऐसे। और कौन थे? प्रिंस थे, श्री कृष्ण वासुदेव के यंग ब्रदर थे। सो ये कौन सा है? कौशल। तो प्रैक्टिकली हम हमारी लाइफ में कैसे कर सकते हैं? જ્યારે કોઈ પણ તકલીફ થાય શરીરને, तो अपने आप को बोलना है ये शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा। भेद ज्ञान को भले पहले दिमाग से आप कर रहे हो, दैट्स ओके, बट धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी, बाद में आत्मा से भी होगा। कई पण तकलीफ आवे, बीमारी आवे, आ शरीर ने थाय छे, मने नथी थती। तो इस तरह से हम भी क्या कर सकते हैं? डे टू डे लाइफ में कौशल कर सकते हैं। तो ये हो गए 12 टाइप के तप। आसान थे, काफी आसान थे ना? इसमें आपको सारे तप कैसे क्या करने हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आप देख लीजिए। कभी कुछ भी आत्म बेनो माता में आपी दिया, आप देख लीजिए। किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। स्वाध्याय में 5 टाइप की था, कैन यू रिपीट? यस श्योर। वाचना, वाचना, पूछना। वाचना मीन्स जब आगम वाचना होती है, स्वाध्याय होता है, कोई आपको कुछ सिखा रहा है। पूछना मतलब आप क्वेश्चन पूछते हो। पर्यटना मतलब रिवाइज करना। अनुपेहा, अनुप्रेक्षा, मेडिटेशन, उस पर मेडिटेट करना, चिंतन करना। धम्म कहा, धर्म कथा। सब अपने बच्चों को भी देना, एक्स्ट्रा कॉपीज है इसमें, क्योंकि क्या बचपन से उन्होंने कौन से तप सीखे हैं? उपवास, आइंबल, एकाशना। Did you get it? Sorry, I don't know your name. My name is Amit. So I have a basic question, maybe. Yes, please. So when I think a lot of people have this, which when they get hungry, they get angry, or they get angry. Yeah. So the short form is angry. So when our kids start to get hungry, we say angry, and it seems like it's a basic human mechanism by which people just get, when they get hungry, they get angry. So as you go through Visna, Asana, Upwas, it's fine, but it becomes, at least for people, becomes difficult. And it just almost seems very hard to do that. And then the second point is like the idea of reducing your anger and whatnot. And like you can try to start in the morning saying, I'm not going to get angry today. But then you go drive, you go do whatever it is. You live your life as a householder. Life happens and you get angry. Right. So how do you actually not even get provoked, but even if you get provoked, there's no reaction to that? Very good questions. Because, I think you go through it all, but it's like, practically, how does one get to a point where you don't even have that reaction anymore? When you're hungry, you don't get angry. Or if somebody angers you, like they do something that would normally anger you, just don't get angry anymore. Very good questions. That's why, there are different steps. The first one is Naukasi. You start with Naukasi tap. That means you are having food 3 times a day. At night, also you can take this Naukasi tap. So slowly you are developing your habit. First you are fasting for only 8, 9, 10 hours. Then you do Ekasana. You just have meal once a day. When you feel you are able to do it properly, then you leave meal for the whole day. So you have to develop your habit. You have to increase your capacity. So baby steps. Overnight, you cannot do upvas because you have not done in the past. And I completely agree. Some people do that. They forcefully do upvas and then they get angry. I've seen that. Then I would advise to that person, if your body doesn't allow that, if your bodily structure doesn't permit you to do fasting, do remaining 11 tap. But you should never ever get angry
while doing fasting. Otherwise, what will happen? You are fasting. So you'll bind some punya and do some karma nirjara. But at the same time, because you are getting angry, you are binding pap karma as well. So that's why, there are 12 different types. You should try all. If not, do whatever is suitable to you. The ultimate aim is you should be in equanimity. You should feel relaxed. It shouldn't happen that upvas kairo chhe ne enu bhar lage. It should not be a burden on you because you are doing it willingly. You are not doing it forcefully. So that's your first question. Second question, at least now you realize, anger is bad, ego is bad, you should reduce. So even though you have decided you will reduce it today, and some situation arises and you get angry, but that alertness is there. So when you are alert that I want to reduce my anger today, and even though you get angry, that intensity is less. See, in normal circumstances, you may remain angry for 5, 10, 15 minutes, maybe an hour. But when you have decided, I want to give up anger today, you may get angry, but that alertness will tell you, calm down. You are supposed to remain, calm, not get angry. So all these things do help us. But your points were valid. A pre-preparation. So when it happens next time, it will be less. Yes. Kind of an alert. Alertness. But you need to practice it. And slowly, your capacity will also increase. Okay? Good questions. One more question. Yes. When you said you make mistake or you hurt somebody, generally, in my case, I would say, ક્યારે મને માફી માંગી લઉં નીકળી ગયા હોય તો મનમાં માફી માંગી લઉં કે ભાઈ મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે મને માફ કરી દેજે બરાબર okay but I haven't gone to the point to tell somebody કે તમે જેમ કહ્યું કે ગુરુ આગળ જાઓ કે પેરેન્ટ્સ આગળ જાઓ અહીંયા તો પેરેન્ટ્સ માં તમારી સ્પાઉસ હોય બરાબર No, it's a valid point. Very good point. Okay. So, I mean, is it good enough to do that, or second step? We do See, many people make mistake, but they don't realize they made the mistake. And the second set of people, in your case, you made a mistake and you realized. So realization is a good prayashchit, first thing. Second thing, you don't have guru here or sadhu sant here, so you don't know how to confess. At least you are noting it down. So that is the second step. Third step, you should have courage to say sorry to the person whom you have hurt, rather than telling your wife or telling your friend. Sometimes they may tell you, no, you did the right thing. You should not say sorry to him. I think you are right. तो आपको एक तो प्रायश्चित हो रहा है और उसमें वो क्या कर देंगे, आपका माइंड रिवर्स कर देंगे. You say sorry to them in your mind. જેમ તમે કહ્યું ને પોતાને શાંતિ મળે. નહીં તો વિચાર મનમાં ચાલ્યા કરે. જો તમે એકવાર મનમાં માફી માંગી લીધી તો તમારા માઇન્ડ માંથી ને તમારા દિલમાંથી એ દંપ ઓછો થઈ જાય. બરાબર છે. પણ એના પછીનું સ્ટેપ, કારણ કે એ તો ક્યારે બી સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં રહેવાનું છે, ક્યારે બી એનું ઉદય થશે કે ભાઈ મેં આમ કર્યું હતું. બેસ્ટ થિંગ, જેને તમે હર્ટ કર્યું છે એને જઈને સોરી કહી દો અને પોતાના આત્માને કમિટમેન્ટ આપો, I will not repeat this mistake. It needs some courage. Okay, but doable. It's not difficult. It's not impossible. Because the ego will go down. Ego will go down. Yes, exactly. So, no, I don't mind saying sorry to if I have made mistake. Great. That's good. That's really good. Yes. Suppose the person does not accept our forgiveness or asking our sorry. What do you No, very good question. Many people ask me that question. See, you know you made a mistake.
So you are confessing it now. You are purifying your soul. You are saying sorry to that person from bottom of your heart. If he doesn't accept, that's his vow. Ena vow. Apda vow. We cannot control other people. We can control ourselves. બરાબર. આપણે કાલે બી ટ્રાય કરશું દાન શીલ તપ ભાવ પર ક્વેશ્ચન આન્સર. કાલે બી ઘણા લોકો હશે, બહુ સારા ક્વેશ્ચન્સ હતા, 3 ઘણા લોકોને ફાયદો થાય. અત્યારે 9:35 થઈ ગઈ. તો કાલે પણ ક્વેશ્ચન આન્સર, હજી ક્વેશ્ચન આન્સર જે બી હોય ફીલ ફ્રી ટુ આસ્ક. આપણે એક લકી ડ્રો કરવાનો છે, બરાબર. આપણી ચીટ્સ રેડી છે. હુ આર ધ ન્યૂ જોઈનર્સ ટુડે? Maybe Amit ji is one of the new joiner. લાઈવ માં કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો બધા આવતીકાલે મોસ્ટલી આવવાના હશો, તો તમારા ક્વેશ્ચન્સ આવતીકાલે આપણે લઈ લઈશું, બરાબર. સમીરભાઈ જી, મને ક્વેશ્ચન તો નથી, પણ મને આજે ચાર્ટ આજે આપ્યું છે તમે થોડું બોલતો, અવાજ બહુ ઓછો આવે. હા, જે ચાર્ટ આજે આપ્યું ને, હાજી હાજી, કાલે આપને મળી જશે. એ હું પછી લઈશ. હા, હું પછી. યસ યસ, there are many copies. You will get it tomorrow. Okay, okay, thank you. Yes, 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 yes. No need to check. ખાલી નવા નામ એડ કરી દો. રેડી? કોણ આવશે? ડોક્ટર સાહેબ આવી જાઓ. આજ મહેન્દ્રભાઈ નથી. મહેન્દ્રભાઈ લાઈવ માં છે. તારું નામ આવી ગયું છે તો કાઢી નાખો છે. અમન. ઓકે, ના ચાલે. ઉર્વશી ને આવી ગયું ને? ઉર્વશી બેન, લલિતભાઈ પધારો. ललित भाई, आप हिंदी बोलते? समझ में आया सब कुछ? मारवाड़ी भी आती है ना? उनका भाई. अच्छा, क्या बात है. गुणबाला बेन, वाह. नहीं नहीं, दैट्स फाइन. आपका लक है. आज सुबह कौन सी प्रेरणा दी थी मैंने? कई प्रेरणा दी? સામાયિક કરવાની, બરાબર. તો આજે આમાં શું છે? આ કેસ છે અને એની અંદર મૂપતિ છે. શું કામ આવી રીતે આપી છે? કે આપણે ઉપકરણનો પણ શું કરવાનું છે? વિનય કરવાનું છે. અને એ એક તપ છે. ઘણાની મોપતિ જોવા જેવી હોય, બિચારી એવી દબાઈ ગઈ હોય, એના એટલી મેલી હોય. એટલે આપણે શું કરવાનું છે? ઉપકરણનો પણ વિનય કરવાનો. કારણ કે બહુ લકી લોકોને આ મળે છે, બધાને નથી મળતું. ઓકે, आओ. उर्वशी बेन, आप दोनों साथ में मिलकर सामायिक कीजिए. बहुत अच्छी. प्रदीप, आ साइड थी भी लई लेजो. अमुक डायरेक्शन है एकदम सामने थी. चलिए, आज 9:40 होने आई है. किसी को पचकाना है? कुछ हो गया ना सबके? ठीक है. हाँ, ये बता. चल, मांगलिक. नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सव साहुणं, एसो पंच नमुकारो
सौव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। चतारी मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवलीपनत्तो धम्मो मंगलम्। चतारी लोगुतमा अरिहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलीपनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपनत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। चार शरणा दुख हरणा मंगल करना अवर शरण नहीं कोई जे भव्य प्राणी आदरे तेने अक्षय अविचल पद होय। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार गुरु गौतम ने समरिये मन वांछित फल दातार। भावे भावना भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान प्रभु भावे पद निर्वाण। बोलो जैन शासन देव की जय। आज के आनंद की जय। जय जिनेन्द्र। तिक्खुतो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि नमन्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि। तिक्खुतो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि नमन्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि। तिक्खुतो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि नमन्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि।
છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં ઓ વંદન અગણી. લાઈવમાં બધાને જય જિનેન્દ્ર. મીટિંગ હું એન્ડ કરું છું. જય જિનેન્દ્ર. બધા પધારજો. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર.